Hello everyone, I am Mudit Jain. As you can see on screen, today we'll be discussing geography, prelims, mapping previous year question papers, and we'll discuss both world and Indian mapping questions. I wrote four mains in UPSC and qualified them all, and geography was my optional. So I have fair enough knowledge with respect to geography, and prelims is a bit different because mapping is world oriented, but then I can share enough knowledge in this session and it will be fruitful for you. So let us start with the first question. Let me tell you the format. I'll put a question on the screen, then I'll switch on a timer of 1 minute because we have to discuss many questions. So we won't put more time. So I'll give you 1 minute. Kindly think over the answer in that 1 minute. Do not just sit idle. Do not please forward the video. It is up to you. If you can try it quicker, then good. But I'll give 1 minute for each and every aspirant. And after that, we'll discuss the question. So the question is on the screen and this is a timer. So this question was asked in 2023 and it reads, which of the following is part of Congo Basin, Cameroon, Nigeria, South Sudan or Uganda? Half the time is over. Okay, so I think it is quite basic. If you know, you know. If you don't know, you don't know because there is no option to eliminate as such. So as you can see, this is the Congo Basin that was asked in the question. Here we have Nigeria, here we have South Sudan, this is Uganda and this is Cameroon. And it is quite obvious as you can see in the shaded region that Cameroon is the correct answer. That is part of the Democratic Republic of the Congo. So Cameroon, that is A, is the correct answer. If you have got it right, then too I'll suggest you to make notes because uh, Africa is upcoming continent and we have had quite a few discussions and international meetings and relationships with Africa in the last 1 year or so. So you can very well expect more questions on African continent. Recently it got membership of G20 as well and the event was in Delhi. So Africa, you can make note of such questions and try to practice such more questions. Now this is the second question. This was again asked in 2023 and it says, consider the following pairs, the areas of conflict mentioned in the news and the country where it is located, and you have to match the correct pairs. All of the areas that are mentioned were in news across the years in 2022, 23. So this is a simple question from places in news. And half the time is over, 30 seconds are left. Please try this question. Do not just sit idle. Please try. Now, this is a kind of question where how many of the above pairs are correct you have to find. So, elimination plays little role in such questions, and if you know the options in depth, then only you can attempt such question. Okay, so the time is over. Let us see the answer of this question. Donbass, as you know, this is a region which was in news because of Russia-Ukraine conflict. And the question basically read that Donbass is matched with Syria. So it is quite obvious that this is wrong. And I am sure you would have got it right as well. Then the second is a region that is that is in news for quite some time,
Even when I was studying mains, my last mains was in 2017, then to this region was in news for obvious reasons. And then it is very easy to guess that the option that was given, Kachin region with Ethiopia, it is wrong. And last is basically a region in Ethiopia. Okay, so the answer basically is that none of the pairs are correctly matched. And the problem in this question is only that you have to know all three options. Frankly, I was not aware about the third option. First two I was aware, and then two I cannot eliminate. So that was the challenge that basically people faced in 2023 prelims. And going forward, I think you will be facing this challenge in 24 as well. So depth matters a lot now. If you are 50-50% sure in this question after attempting the first round of the questions, where you are certain about say 40 questions, and this is a 50-50 questions where you have eliminated two options and you are left with only one and none, then you can make a wild guess. Third question is, consider the following countries. Consider the following countries: Bulgaria, Hungary, Latvia, Czech, Lithuania, and Romania. How many of the above mentioned countries share a land border with Ukraine? Again, a question directly from place in news. Ukraine has been in news for last 2 years, and you can expect question on Ukraine, Russia, Caspian Sea, etc. even in 2024. So try this question. Again, it is a question of how many of the above mentioned countries share border. So you have to be aware about the border completely, about the world map. Then only you will be able to answer this question. There is a country which is quite far from the region, and you can simply eliminate that country in this option. Okay, time is about to be over. I hope you have tried this question. Let us see the answer. So this is a map of Ukraine and Russia, and the border countries are shown clearly that Ukraine has border with Belarus, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova, and Russia, of course. So these are the countries. Now you just have to match the countries that are present in the options, and you will see that only two of them basically have border with Ukraine, and hence A is the answer. If you have not got this question correct, you need to work more on Ukraine Russia region. Try to learn these countries, try to make some anecdotes of these countries which share border with Ukraine and Russia, because you can expect similar question in 24 as well. This is the fourth question. Consider the following countries and which of the above have border with Afghanistan. तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में रशिया यूक्रेन से बॉर्डर पूछा था, अब अफगानिस्तान से पूछा है. सिमिलर नेचर का क्वेश्चन है, रीजन भी सेम है कि अफगानिस्तान वाज इन न्यूज इन 22 एंड 23 एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. सो पिछले क्वेश्चन में जहां आपको यूक्रेन रशिया का बॉर्डर पता होना चाहिए था, वहां आपको अब अफगानिस्तान का बॉर्डर पता होना चाहिए. तो थीम वही है, कंट्रीज डिफरेंट हो गई है बेसिकली. अब इस बार न्यूज में पैलेस्तीन है, इजराइल काफी न्यूज में है, तो इजराइल पैलेस्तीन से रिलेटेड कंट्रीज का बॉर्डर इस बार पूछा जा सकता है. पहले भी पूछा गया है कि जॉर्डन से रिलेटेड पूछा है, रीजन पूछे हैं, तो वो मैपिंग एरिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार. ठीक है, लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अफगानिस्तान का ये मैप है और इसमें आप क्लियर देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो उसके बॉर्डर में है. तो क्वेश्चन में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान था. अजरबैजान बॉर्डर शेयर नहीं करता है अफगानिस्तान के साथ, तो अजरबैजान आपको पता होना चाहिए. अगर अजरबैजान आपको पता था कि बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो ए, बी और डी सीधा एलिमिनेट हो गए और एक ही ऑप्शन बचता है जो कि सी है. तो 3, 4 एंड 5 तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान आंसर है. ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको अजरबैजान पता है. अब अगर अजरबैजान नहीं पता है तो मैपिंग पे काम करने की जरूरत है, बिकॉज ये काफी बेसिक क्वेश्चन था और ये लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि आप एक ऑप्शन एलिमिनेट करा आपने और आपको आंसर मिल गया उसके बाद.
ठीक है, तो आंसर इसका सी है। 3, 4 एंड 5, 1 को एलिमिनेट करते ही आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेयर बेस्ड क्वेश्चन है तो ये थोड़ा टफ होगा, इसमें एलिमिनेशन क्योंकि मुश्किल है। तो अब ये कंट्रीज दी हैं और उसके रीजन दिए हैं और उनको मैच करना है कि करेक्टली मैच्ड कौन सी है। एनाटोलिया टर्की लिखा है, अम्हारा इथोपिया लिखा है, उसके बाद एक स्पेन का रीजन है और कैटेलोनिया इटली के आगे लिखा है। ठीक है, कैटेलोनिया आई होप सबको पता होगा, काफी फेमस मूवमेंट थी इंडिपेंडेंस की भी, लैंग्वेज की भी। मैं बता देता हूँ, वो स्पेन है कैटेलोनिया। तो कैटेलोनिया देखते ही, ये क्वेश्चन देखते ही आपको एलिमिनेट कर दोगे आप कि 3 और 4 तो मेरे हिसाब से गलत है इसमें। कैटेलोनिया स्पेन होना चाहिए और जो 3 है वो स्पेन नहीं होगा फिर। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट यहाँ पे ही हो जाएंगे। 2 ऑप्शन आपके यहीं पे एलिमिनेट हो गए। अब आपको पहले 2 में देखना है कि वो सही है या नहीं। तो ऑप्शन आपका सी और डी तो एलिमिनेट हो ही गया है, ए और बी में आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो एनेटोलिया यहाँ पे सही है कि वो टर्की का है, तो पेयर 1 इज मैच्ड करेक्टली। एनेटोलिया पहले भी पूछा गया यूपीएससी में, 2-3 बार पूछा गया, आप आगे देखोगे ये रिपीट होगा रीजन। तो ये रीजन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ब्लैक सी से नेबर होता है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ये 3 रीजन भी काफी बार पूछे गए हैं। तो अगर आप पूरी मैपिंग को लेके अवर्स हो, आपको डर लगता है, तो स्टिल मेरी एडवाइस ये है कि ये 3 रीजन जरूर कर लो, क्योंकि ये 3 सीज जरूर कर लो, इसके इन एंड अराउंड क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। तो पहला तो मैच हो रहा है और सेकंड पेयर भी मैच है। ये थोड़ा टफ था। ये टिग्रे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यूथोपिया, और ये अम्हारा अब पूछा गया। तो ऐसे आप इसे एनालिसिस जब करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक साथ, तो आपको पता चलता है कि फोकस एरियाज क्या है। तो यूपीएससी बेसिकली इथोपिया पे फोकस कर रहा है, तो इस रीजन को आप प्रिपेयर कर लो। 3 तो मैंने वो सीज बताई और एक ये इथोपिया का रीजन हो गया, क्योंकि ये बार बार अब आप देख रहे हो पूछा जा रहा है, एक बार ये पूछा है, एक बार ये पूछा, अगली बार हो सकता है वो ये पूछ ले आपको, तो आप प्रिपेयर होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, 3 मैंने आपको पहले ही बता दिया था इनकरेक्ट है, और 4th भी इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन हो गया ओनली 2 पेयर्स। इजी हो गया थोड़ा, अगर आपको स्पेन और कैटेलोनिया पता था, जो कि बहुत बेसिक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें रिवर्स दी हैं और ये रिवर्स कहां मीट होती है जाके, किस सी में, वो आपको बताना है। और एलिमिनेशन इसमें आप कर सकते हो, 2020 का क्वेश्चन है ये। देखिए, इसको अप्रोच पे आपको बताता हूं। जैसे जेम्बेजी लिखा है, जेम्बेजी रिवर, वो मुझे पता है कि वो जिम्बाब्वे की रिवर है, जिम्बाब्वे ईस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, तो वो इंडियन ओशन में फ्लो होती होगी 100%, क्योंकि वेस्ट तक जाना चांसेस कम है, वो ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो वो इंडियन ओशन में फ्लो होती होगी। तो मैंने 4, मैंने मान लिया मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग कि 4 ऑप्शन तो सही है। अब अगर 4 सही है तो ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो जाता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, या तो सी या डी। क्या थर्ड मैच है करेक्टली, या क्या 1 एंड 2 करेक्टली मैच है। अब आपको थेम्स रिवर पता हो या ना पता हो, आपको मेकॉन्ग पता होनी चाहिए कि वो साउथ ईस्ट एशिया की रिवर है। तो इट इज मोर लाइकली कि वो चाइना सी में मिल रही हो, ना कि अंडमान सी में। तो आप 1 को एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपने 1 एलिमिनेट कर दिया और आपने बोला है कि 4 तो पक्का सही है, तो आंसर आपका 3 एंड 4 हो गया। जबकि वोल्गा बहुत आसान है, रशिया की रिवर है, कैस्पियन सी में मीट करती है। वो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इस आंसर पे अराइव कर सकते हो कि इसका आंसर सी होगा। बेकोंग रिवर वही है, देखो साउथ चाइना सी में फ्लो हो रही है ये। उसके बाद इन्होंने आयरिश सी में 4 मेजर रिवर्स जो मीट होती हैं वो बताया। थेम्स आयरिश सी में फ्लो नहीं होती, वो नॉर्थ सी में फ्लो होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत था। वोल्गा रिवर मैंने आपको बताया कि रशिया से ये कैस्पियन सी में जा रही है, तो ये करेक्ट है।
और लास्ट आपकी जम्बेजी रिवर जो है ये आपका जिम्बाब्वे हो गया और ये यहाँ से फ्लो होते हुए इंडियन ओशन में जा रही है। तो आपका आंसर 3 और 4 आ गया। ये इजी क्वेश्चन था अगेन, क्योंकि एलिमिनेशन इसमें इजीली पॉसिबल है। अगेन अब इसमें आप नोट करोगे कि अफ्रीका का यहाँ पे दोबारा रेफरेंस है, तो अफ्रीका, इथोपिया, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ये फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं यूपीएससी के, और वो कॉन्स्टेंटली लगातार इनसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स सी और उनकी बॉर्डरिंग कंट्री, कि कौन सी सी की बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है। अब इसमें भी एलिमिनेशन बहुत इजीली पॉसिबल है। मेडिटेरेनियन रीजन आपको पता है कि स्पेन, इटली, मोरक्को का होता है, तो फोर्थ तो पक्का इसमें सही होगा। अब अगर 4 सही है तो सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। 4 इन सब में आ रहा है जिसपे 1 भी है, तो 1 अपने आप ही ठीक हो गया। 1 पे आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आपको एलिमिनेट क्या करना है कि क्या मेरे सारे सही है या कुछ इसमें गलत है। 10 seconds more. We'll see detailed map for this question. ओके, सो एड्रियाटिक सी मैंने बताया, वो तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है एक ऑप्शन को, तो एड्रियाटिक सी हमें पता है वो करेक्ट ही है। फॉर नॉलेज सेक आई टेल यू दैट एड्रियाटिक सी इटली और बैल्कन पेनिनसुला को सेपरेट करती है, बीच में आती है एड्रियाटिक सी। ठीक है, ये ज्यादा नहीं पूछा गया है, तो थोड़ा रेयर क्वेश्चन हो सकता है। एड्रियाटिक सी इतना नहीं आया यूपीएससी में। ब्लैक सी तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये सब आपने प्रिपेयर करनी ही है। तो ये ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज हैं। उसके बाद ये कैस्पियन सी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये उसकी नेबरिंग कंट्रीज है। और ये मेडिटेरेनियन सी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरेनियन मोरक्को रीजन को सराउंड कर रही है, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मेडिटेरेनियन हो गया आपका, और ये मोरक्को रीजन को सराउंड हो रहा है, तो ये करेक्ट है आंसर, ये आ गया मोरक्को। ठीक है, उसके बाद रेड सी और सीरिया का जो इस पर लिंक था वो गलत है। रेड सी सीरिया पे नहीं जाती है। अगर आपको सीरिया, ये काफी फेवरेट रीजन है, आपको सबको पता है, बताने की भी जरूरत नहीं है, तो ये पता होगा कि जॉर्डन जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, और जो रेड सी है वो जॉर्डन के ऊपर पड़ता है, और रेड सी यहां पर है, सॉरी सीरिया जो है वो जॉर्डन के ऊपर पड़ता है। तो अगर आपको ये बेसिक चीज पता है कि जॉर्डन लैंडलॉक कंट्री है इन द साउथ ऑफ सीरिया, और रेड सी नीचे पड़ता है जॉर्डन के, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ वो जो लिंक बनाया इन्होंने रेड सी और सीरिया का वो गलत है। तो इस अप्रोच से आप अराइव करोगे कि फिफ्थ ऑप्शन जो है वो गलत है, फोर्थ मैंने आपको बताया था सही है। और ब्लैक सी का अगर आपको नेबरिंग कंट्रीज पता है तो क्रोएशिया को एलिमिनेट करना बहुत आसान है, तो इसलिए बी इसका आंसर है 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रीजन को मैच करना है कंट्री से। अभी कैटेलोनिया तो हमने पहले ही देखा है पिछले क्वेश्चन में, एक में कैटेलोनिया स्पेन आपको पता चल गया कि करेक्ट है। क्रीमिया, मतलब पहले इतना आसान पेपर आता था कि क्रीमिया इन्होंने क्वेश्चन दिया है हंगरी से लिंक करके एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन में, वो आप तो अब कोई भी उसको एलिमिनेट कर देगा। क्रीमिया पेनिनसुला आपको पता है कि कहाँ है। ठीक है, तो 1 सही है और 2 गलत है। अब ऑप्शन क्या बचे आपके पास, ये तो गलत हो गया, 2 गलत है, ये 2 गलत है। अब ऑप्शन आपके पास बच गए, 1 सही आपने बोला है, तो 1 और 3 सी इसका आंसर है। आपको बाकी ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सी आंसर है 1 और 3। ठीक है, तो इससे आपको चलो एक चीज क्या सीखने को मिली कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं तो वो थीम्स कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, वो एज ऑप्शंस रिपीट होंगे। जैसे कैटेलोनिया यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो वो देखते ही कैटेलोनिया स्पेन है, मुझे पता चल गया कि 1 सही है और 2 मुझे पता है गलत है, तो इसको करने में मुझे 10 सेकेंड्स भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये टाउन्स हैं जो कि इन न्यूज रहते हैं हमेशा, और ये कंट्री उसके आगे दी है। अगेन 2018 का क्वेश्चन है, बिना ईयर देखे मैं बता सकता था ये पुराना क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मोसुल आपको पता है वो इराक में है, मोसुल पैलेस्तीन में नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थ्री जैसे एलिमिनेट होता है, ये चला गया, ये चला गया, ए और बी रह गए। ए और बी में वन एलेपो एनीवे आपको पता था, लेकिन अब वन तो दोनों में है। अब फाइट है टू और फोर के बीच में कि टू सही है या फोर सही है। ठीक है, तो अगर ये किसी को नहीं पता है, आई फॉरगॉट टू स्टार्ट द टाइमर। एनीवे विल मूव ऑन बिकॉज दो ही ऑप्शन रह गए अब कि या तो ए सही होगा या बी सही होगा। ये अफगानिस्तान में है, मज़ार शरीफ। ठीक है, और जो आपका किरकुक यहाँ पे यमन में दिया था वो गलत है। ये प्लेस इन न्यूज था 2018 में, जब मैं इस सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने वो रीजन देखा, मैंने उसके बारे में पढ़ा कि क्या रीजन है, और उससे पता चला था ये यमन में नहीं है। ठीक है, मज़ार शरीफ भी प्लेस इन न्यूज था। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली प्लेस इन न्यूज से ही आए हैं। अगर करंट अफेयर्स थॉरली प्रिपेयर्ड हैं तो क्वेश्चन हैंडल करना आसान है। हमने दो एलिमिनेट कर दिए थे, किसी को हो सकता है ये दो ना पता हो, तो वो 50-50 वाले कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट आप राउंड में सर्टेन क्वेश्चन एकदम मार्क करते हो, और उसके बाद जो 50-50 के क्वेश्चन है वो आप मार्क कर सकते हो इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। अब ये इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन है। हमने अब तक लगभग जितने क्वेश्चन देखे थे वो शायद सारे वर्ल्ड के ही थे, तो इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें अंडमान निकोबार के लिए पूछा गया है कि क्लोजेस्ट इनमें से ग्रेट निकोबार के कौन सा है। ये ऐसा रीजन है मैपिंग का जो जनरली हम छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं इसको करना, और दो या तीन क्वेश्चन एटलीस्ट इसमें से ऑफ लेट पूछे गए हैं। पहले तो बहुत ज्यादा पूछे जाते थे अंडमान निकोबार से। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो कि कौन सा ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट है ग्रेट निकोबार के। 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपका मैप है। अब इसमें ऑप्शंस क्या थे, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एंड श्रीलंका। तो ये आपका बोर्नियो हो गया, ये सुमात्रा हो गया, उसके बाद जावा आपका यहाँ आया, और वो श्रीलंका हो गया। और पूछा है कि नियरेस्ट कौन सा है ग्रेट निकोबार से। तो ग्रेट निकोबार से आपका नियरेस्ट आया है सुमात्रा। बोर्नियो दूर हो गया, जावा दूर हो गया, और श्रीलंका काफी दूर है। ठीक है, तो सुमात्रा इसका आंसर होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स उनके लिए होना हो सकता है जिन्होंने ये एरिया ही छोड़ दिया, लेकिन अगर थोड़ा भी रफ आइडिया है तो आपको ये पता होगा कि सुमात्रा जावा के वेस्ट में लाई करता है, जावा ईस्ट वर्ड्स है। तो उससे आप एक ऑप्शन तो एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हो। कई लोग कंफ्यूज होकर श्रीलंका मार्क कर सकते हैं इस आंसर में, अगर मैप की रिलेटिव डिस्टेंस आपको नहीं पता। एलिमिनेट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, एक सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है तो थोड़ा टफ हो सकता है। अगर स्किप करना चाहो तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि अटेम्प्ट करते हुए क्या लगता है कि यार बहुत आसान है, एक ही ऑप्शन तो है, कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। The Mediterranean Sea is a border of which of the following countries? Again, a favorite topic: Mediterranean, Caspian, Black Sea, Red Sea. सीज के अराउंड कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, कौन से टाउन्स हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मेडिटेरेनियन रीजन तो आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक में हिंट दिया था कि जॉर्डन इज अ लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, तो वो सी के बॉर्डर पे तो हो ही नहीं सकता। तो वन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। वन एलिमिनेट हो गया तो ए और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बच गया बी और सी। बी और सी में थ्री तो दोनों बोल रहे हैं कि सही है। अब फाइट है टू और फोर के बीच में। अब ये उस कैटेगरी में आ गए हो आप 50-50 में। अब आपकी नॉलेज यहाँ पे काम आएगी।
कि इराक क्या मेडिटेरेनियन के बॉर्डर पे है या लेबनान जो है वो मेडिटेरेनियन के बॉर्डर पे है। 3 सेकेंड्स, 2, 1। देखते हैं अब इसे। ये मेडिटेरेनियन सी है आपकी, ठीक है, और ये आ गया आपका लेबनान। इराक तो काफी दूर है, तो अगर किसी को बेसिक आइडिया भी है मैपिंग का इराक का कि वो किस एरिया में लाई करता है, तो ये क्वेश्चन आसान है बहुत। एक ऑप्शन तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया था, जॉर्डन को। तो अब इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, दैट इज 3 और 4। 3 और 4, ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इफ यू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टयम, what is the minimum number of states within India through which you can travel including the origin and the destination? तो कोहिमा नागालैंड में है, कोट्टयम केरला में है, 2 स्टेट्स तो वो हो गई। बाकी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कौन सी होंगी जिनसे ट्रैवल करते हो आप कोहिमा से कोट्टयम तक पहुंच जाओगे। तो जब आप ऐसा क्वेश्चन करते हो तो मैप को आपको ऑफकोर्स विजुलाइज करना होगा दिमाग में। इंडिया का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो इजी होना चाहिए हैंडल करने के लिए। ट्राई करिए प्लीज। 10 seconds मोर। ठीक है, हम आंसर देखते हैं इसका। कोहिमा मैंने आपको बताया नागालैंड, वहां से आप गए असम। असम सेकंड स्टेट हो गया आपका। फिर आप आए वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्रा, फिर तमिलनाडु, और उसके बाद आया केरला। तो 7 स्टेट्स हैं मिनिमम जो कि ट्रेवर्स करके आप कोहिमा से कोट्टयम जा सकते हैं। तो अगर मैप पता है तो आसान है ये हैंडल करना। एक आधी स्टेट भी इधर उधर हो गई तो काउंट बदल जाएगा। तो अगर ये श्योर शॉट नहीं हो तो ये क्वेश्चन अटेंड मत करो, क्योंकि ऑप्शंस भी क्लोज ऑप्शंस है 6, 7, 8। तो ये गलत होने के चांसेस हैं डिस्पाइट नोइंग द स्टेट्स। वेटलैंड्स पहले काफी पूछा जाता था, वेटलैंड्स पे क्वेश्चन हम लोग अपने टाइम पे काफी स्पेसिफिकली प्रिपेयर करते थे। वेटलैंड्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये वेटलैंड पे क्वेश्चन है कि ये कौन सा वेटलैंड किस स्टेट में है, सिंपल मैच करना है। लेकिन अब कंफ्यूजन बस क्या है यहाँ पे, ये पेयर यूज करा है इन्होंने, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 और 4। तो अगर एक भी नहीं पता है तो हैंडल करना मुश्किल होगा। अब जैसे मुझे इसमें पता है कि रुद्र सागर सही है, त्रिपुरा में है, ठीक है, उसके बाद भी मैं आंसर पूरा नहीं कर सकता जब तक मुझे सारे ऑप्शंस नहीं पता होंगे। सस्टम कोटा मुझे पता है कि केरला में है, तो चलो ये एलिमिनेट हो गया कि ऑल 4 पेयर्स तो करेक्ट नहीं है अभी भी, लेकिन 3 पेयर्स करेक्ट हो सकते हैं। रेणुका हिमाचल में है, ठीक है। पोकेरा कहाँ पर है, पंजाब में है या नहीं, वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। तो या तो इसका 2 पेयर होगा आंसर या 3 पेयर आंसर होगा। तो अब अगेन ये 50-50 वाले कंटेंशन में आ जाएगा। आंसर देखते हैं इसका। पोकेरा आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन जो है दैट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अब आपके पास क्या बचा इसमें, 4 पेयर्स तो हमने पहले ही हटा दिया था, 3 पेयर भी हटा दिया। इसका 2 पेयर आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन 2 और 3 मेरे हिसाब से करेक्ट है। रेणुका वेटलैंड इज इन हिमाचल प्रदेश, सो 2 इज करेक्टली मैच्ड। और तीसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रुद्र सागर इज इन त्रिपुरा। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो स्टिक कर जाते हैं आपके दिमाग में, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट के रुद्र सागर जो है वो त्रिपुरा में, ये मेरे दिमाग में था बिकॉज ऑफ दिस रेड लिस्ट 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एनवायरमेंट में डालते हैं कुछ लोग इन्हें, कुछ ज्योग्राफी में डालते हैं कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशी वगैरह कौन से। कई बार ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर देते हैं वेटलैंड्स या नेशनल पार्क्स को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन वेटलैंड्स। ओह सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हिल्स पे है।
के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अमरकंटक हिल्स आर एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। फिर ऑप्शन 2 बोला है सतपुड़ा रेंज, और ऑप्शन 3 के शेषाचलम हिल्स जो है वो वेस्टर्न घाट में है। मैं मल्टीपल टाइम्स मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है और शेषाचलम मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार पढ़ा है मैंने उसे, तो वो देखते ही मुझे क्लिक होगा कि नहीं ये वेस्टर्न घाट में नहीं है, वो ईस्टर्न घाट में है। तो ऑप्शन 3 तो जो है वो हट गया। अब इसमें भी हाउ मेनी पूछा है, तो ऑल 3 तो गलत है 100%। अब आपको एलिमिनेट कुछ करना है कि आपको या तो फर्स्ट पता हो या आपको सेकंड पता हो। अगर दोनों में से एक भी नहीं पता तो क्वेश्चन टफ होगा हैंडल करने के लिए। हो सकता है आंसर नन हो सकता है वन ओनली हो, या हो सकता है टू हो। तो ये टफ क्वेश्चन है बिकॉज एलिमिनेशन इसमें सच पॉसिबल नहीं है, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट के 3 तो डेफिनेटली रॉन्ग है। अमरकंटक, अमरकंटक हम देखते हैं, अमरकंटक इधर है, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है कि इट इज नॉट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस, विंध्या तो उधर है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन था आपका वो सतपुड़ा रेंज में नहीं है, वो ईस्टर्न घाट्स में है, ये ईस्टर्न घाट्स में, तो सेकंड भी रॉन्ग है। और थर्ड जो था वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो ईस्टर्न घाट्स में शेषाचलम हिल्स, तो नन इसका आंसर है। अब ये प्रिपेयर कैसे करना है, एक हिल्स की लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, ट्राइब्स की लिस्ट प्रिपेयर कर लो, नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स, इन सब की लिस्ट अलग से प्रिपेयर कर लो। एटलस मैंने नहीं रीड करी है, अगर आपको पढ़ना है आप प्रेम पटेल बुक पढ़ सकते हो। प्रेम पटेल बुक, इंडिया मैप्स थ्रू प्रेम पटेल बुक ऐसे करके उसका नाम है। पतली सी बुक है, लेकिन उसमें कैटेगरी वाइज सब कुछ स्प्लिट है, हिल्स का अलग है उसमें, प्लस वो मैपिंग के साथ इंफॉर्मेशन भी देते हैं उसमें। तो मैंने अपने ज्योग्राफी मैपिंग के लिए प्रेम पटेल बुक पढ़ी थी, आप वो रेफर कर सकते हो। अगर उसमें आई एम डेड श्योर कि ये बहुत ही क्लियरली मेंशन होगा कि हिल्स कौन से किधर है। नेक्स्ट, ये एक फेमस पर्सनालिटी ने ट्वीट करा था, और उस ट्वीट से मैंने भी कॉपी करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ये क्वेश्चन पिछली बार प्री से पहले दिया था, और वो क्वेश्चन आया प्री में। ठीक है, तो अब प्री ऐसा हो गया है कि जनरिक अवेयरनेस या इधर उधर से उठ के काफी क्वेश्चंस आते हैं, ना कि डायरेक्ट किसी स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी बुक से। तो वो टू बी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम वाली बात है। अगर आपने वो क्वेश्चन देखा है कहीं, वो पढ़ा है, न्यूज में आ गया वेल एंड, पेपर में आ गया वेल एंड गुड। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने ग्रुप पे भी दिया था, आंसर मुझे अच्छे से याद है इसका। मैं आंसर दिखा देता हूँ क्योंकि दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन, अगर आपको पता है नहीं पता तो इसमें कुछ ऐसा सच एलिमिनेट करने का नहीं है। इसका आंसर पेनार रिवर है। ये ग्रैंड कैनियन है यूएस का, और ये गंडीकोटा कैनियन है। तो ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है, एंड इट इज फाउंड बाय पेनार रिवर। ठीक है, ये पीक्स का क्वेश्चन है। अभी हमने हिल्स देखे, कैनियन देखा, अब ये पीक्स का क्वेश्चन है कि कौन सी पीक किस माउंटेन रेंज पे है। तो जैसे मैंने अभी आपको हिल्स का बताया था, हिल्स, पीक्स, रिवर्स, इन सब की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो। कॉमन जो पूछे जा रहे हैं ये थीम से एनालाइज करो जो अब तक आए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रिपेयर करो। नामचा बरवा ईस्ट में आता है, ये बेसिक है, आपको पता होगा ईस्टर्न इंडिया में, तो पहला तो रॉन्ग है। ठीक है, अब आप एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने 1 एलिमिनेट कर दिया, तो मेरे ऑप्शन बच गए 2 ओनली या 3 ओनली। अब 2 नंदा देवी जो है वो सही है कुमाऊं में, तो डेफिनेटली 3 जो है वो गलत है। अगर इस पे 2 एंड 3 होता ऑप्शन तो फिर भी फंस सकता था क्वेश्चन। अगर नोकरेक आपको नहीं पता कि वो सिक्किम में नहीं है, वो मेघालय में है, तो ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है अगर आपने ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि वो ईस्टर्न हिमालयस में पड़ता है। ये वही है, नामचा बरवा देखो एकदम ईस्टर्न पीक पे आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है अगर आपने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया, तो 2 ओनली आंसर है। इजी क्वेश्चन था ये। विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, ऑफ द फॉलोइंग 4 rivers, 3 of them pour into one of them,
कि 3 नदी ऐसी हैं जो उनमें से एक में फ्लो करती है, विच लेटर जॉइंस इंडस डायरेक्टली। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसमें बाकी 3 नदी जो हैं वो मीट करती हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम में जितनी भी रिवर्स आती हैं आपको वो क्लियरली पता होनी चाहिए। फिर उसमें वो मेजर रिवर कौन सी है उसका आपको गेस लगाना है कि ऐसी इंडस के अलावा और सबसे मेजर रिवर कौन सी है जो कि इंडस में मीट करती होगी। इसका आंसर डायरेक्टली देख लेते हैं क्योंकि एज सच एक्सप्लेनेशन का इसमें कुछ नहीं है। सतलज इसका आंसर है कि बाकी रिवर्स आप देख रहे हो 3 नदी जो इसमें आके मीट कर रही हैं और वो फिर इंडस में जाके मीट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। के ईस्टर्न घाट्स में इनमें से कौन सा रिवर या रिवर बेसिन जो है वो ईस्टर्न घाट्स पे राइज करता है। अब तक आपने अगर कुछ ऑब्जर्व कराओ, ईस्टर्न घाट्स के हिल्स भी पूछे गए हैं, रेंजेस पूछी गई हैं, और ये रिवर सिस्टम भी देखो ईस्टर्न घाट्स का पूछा गया है। तो इससे आप थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ईस्टर्न घाट शायद फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का। और आप कुछ और प्रिपेयर करो ना करो, ईस्टर्न घाट जरूर प्रिपेयर करना। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक आप लगा सकते हो। अगर एक भी आपको क्लियर हो गया, आपको अगर लगता है कि वन तो गलत है, तो ए और डी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। उसके बाद 50-50 पे अराइव हो जाओगे आप। तो ये एक भी अगर ऑप्शन पता है तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है। इट इज वन ऑफ द डुएबल क्वेश्चंस। अब इसमें अब देखोगे वंशाधारा बेसिन, नागावली बेसिन और गोदावरी बेसिन ये आपके ईस्टर्न में आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है आपका वंशाधारा और नागावली सही है। तो 2 एंड 4 इसका आंसर होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए इसका। इसका बी आंसर है। बाकी दोनों जो सिस्टम्स है वो ईस्टर्न में अराइज नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने रिवर्स अगर स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं करी है तो ये वन ऑफ द लेसर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ये रिवर्स सिस्टम्स पूछे जाए। तो अगर मेरा जैसे ज्योग्राफी बैकग्राउंड था तो वो दो मुझे पता थे, ठीक है, तो मेरे लिए हैंडल करना आसान है क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो और फिर 50-50 का गेस कर सकते हो। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है, ये तो बेसिकली सबको ही पता होना चाहिए, इतना फेमस रीजन है। तो ये आंसर गलत होना मुश्किल है, मैं टाइमर भी नहीं लगा रहा हूँ। नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली इसका आंसर है। ईस्ट ऑफ अक्साई चिन तो हो ही नहीं सकता, वो तो चाइना है उधर ईस्ट में, ठीक है। तो ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। गिलगिट के नॉर्थ भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन आप या तो कंफ्यूज हो सकते थे ईस्ट ऑफ ले में या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में। ये अक्साई चिन है, यहाँ आपका सियाचिन पड़ता है, ये नुब्रा वैली है, तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली इसका आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये फेमस प्लेसेस हैं और रिवर्स भी है कि किस रिवर के अराउंड कौन सा प्लेस ये सिचुएटेड है। हम्पी आपको डेफिनेटली पता होगा, इतना विजयनगर एम्पायर हम्पी कि वो तुंगभद्रा रिवर के अराउंड है। तो ये गलत है, मालप्रभा के अराउंड नहीं है। तो सी को 3 को आप एलिमिनेट कर सकते हो। 3 एलिमिनेट करते ही 1 एंड 2 आंसर हो गया। आपको बाकी दो पता भी हो या ना पता हो, इट डज नॉट मैटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2019 का है। इट वॉज बाउंड टू बी बिफोर ऑफ 2022 से ऐसे इजी क्वेश्चन मैंने देखे ही नहीं है प्री में। तो ये ऑप्शन 1 एंड 2 इसका आंसर होगा। ये देखिए इसमें ये इसका एक्सप्लेनेशन के पंधारपुर जो है ये चंद्रभाग रिवर के साइड में है, त्रिचुरापल्ली जो है कावेरी रिवर के बैंक्स पे है, हम्पी जो है वो तुंगभद्रा के बैंक पे। तो वो ऑप्शन एलिमिनेट करते ही क्वेश्चन खत्म हो गया बेसिकली। 1 एंड 2 ओनली। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ग्लेशियर और रिवर से एसोसिएशन। के कौन सा ग्लेशियर जो है किस रिवर से, कौन सी रिवर जो है वो किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, बंदरपूछ, यमुना या बड़ा शिगरी, चेनाब। तो ये
अभी हमने डिस्कस करा था नुब्रा वैली सियाचिन, तो इससे आपको पता चला ये रिपीटेड थीम है। तो नुब्रा और सियाचिन तो डेफिनेटली करेक्ट है, तो 4 पक्का करेक्ट है। 4 अगर पक्का करेक्ट है, सी और डी एलिमिनेट हो गए। अब 1 तो दोनों में आ रहा है, तो फाइट है 2 और 3 के बीच में कि 2 करेक्ट है या 3 करेक्ट है। ये आपको अब पता होना चाहिए, नॉलेज का गेम है यहाँ पे कि बड़ा शिगरी चेनाब से एसोसिएटेड है या मिलम जो है वो मंदाकिनी से एसोसिएटेड है। एनीवे 50-50 में तो आप आ ही गए हो, तो इसमें आप वाइल्ड गेस उसके बाद ले सकते हो कि अगर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सोच रहे हो अटेम्प्ट करने का और वो नहीं हो पाए हैं, तब हम 50-50 गेस जनरली मारते हैं, तो उसमें आप उस कैटेगरी में आप ये सॉल्व कर सकते हो। बदरपूछ यमुना पे है, वो तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दी, वो तो करेक्ट था, हमें पता था। ठीक है, सियाचिन नुब्रा से एसोसिएट करते ये तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए, तो मैं इन्हें डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। हम बस 2 और 3 देखेंगे। 2 और 3 में बड़ा शिगरी ग्लेशियर जो है वो चेनाब रिवर से एसोसिएट है, और मिलम ग्लेशियर जो है वो गोरी गंगा से एसोसिएटेड है, ना कि मंदाकिनी से। तो 3 गलत है, तो 1, 2 एंड 4 दैट इज ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Consider the following statements. The barren island volcano is an active volcano located in the Indian territory. अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि वो एक्टिव है या डोरमेंट है। तो 2018 का क्वेश्चन है, और 2018 में ही वो लास्ट टाइम एक्टिव हुआ था वोल्केनो। ठीक है, तो ये एक्टिव वोल्केनो है, इस ब्रीफ नॉलेज से आपको क्लियर हो जाएगा। और ये फर्स्ट तो ठीक हो गया कि वो एक्टिव है, ये गलत हो गया सी कि वो 1991 में लास्ट एक्टिव हुआ था। तो 3 गलत है, ये गलत है, ये गलत है, 1 ओनली इसका आंसर होगा। जैसे ही आपको पता चला कि वो 2018 में एक्टिव था, 3 एलिमिनेट होते ही बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ये करंट अफेयर से सीधा क्वेश्चन आया है, इसमें ज्यादा ऐसा ज्योग्राफी की नॉलेज भी नहीं है। तो करंट अफेयर्स अगर उस समय आपने अच्छे से पढ़ी होती, मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट दिया होगा, तो उस साल ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। 1 ओनली आंसर। Among the following cities, which one lies on a longitude closest to that of Delhi? तो ये स्ट्रेट लाइन आपने खींचनी है दिल्ली से नीचे तक, विजुलाइज करना है, और फिर देखना है कि उस स्ट्रेट लाइन के नियरेस्ट कौन सी सिटी इनमें से आती है। नागपुर आपको पता है थोड़ा ईस्टर्न है, तो नागपुर आप एलिमिनेट कर सकते हो। पुणे वेस्टर्न है, एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप आ गए 2 पे, बैंगलोर और हैदराबाद। बैंगलोर, with my experience, I know Bangalore is a little eastwards from that line, and Hyderabad is a little eastwards, and Bangalore would be the answer of this question. Even if you don't know, then we have arrived at 50-50. दो तो हमने eliminate कर दिया, and you can take a wild guess after that. See, नागपुर अलग ईस्टर्न है, पुणे वेस्टर्न है, हैदराबाद हल्का सा ईस्टर्न है, बैंगलोर इज ऑन द स्ट्रेट लाइन, सो बैंगलोर इज द आंसर। Consider the following statements. In India, the Himalayas are spread over 5 states only. अब ये पहले ऐसा होता था, आज भी, मतलब ये देखिए 2017, वो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है मुझे कि पुराना क्वेश्चन रहा होगा। अब ज़्यादातर ऐसी स्टेटमेंट्स ही नहीं आती है ओनली वगैरह की, क्योंकि एलिमिनेशन मुश्किल करता जा रहा है यूपीएससी। जहाँ पहले ऐसा होता था ओनली लिखा होता था, हम उसे आठ बंद करके एलिमिनेट कर देते थे। अगर ज्योग्राफी पूरी अच्छे से पता है तो आपको पता होगा कि 5 स्टेट्स तो मेरे ख्याल से वेस्टर्न इंडिया में ही कवर हो जाएंगी हिमालयास की। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। अगेन दूसरे ऑप्शन में भी ओनली यूज करा है, इसको हम एलिमिनेट ऐसे ही कर देते थे। इस लेक के बारे में आपको पता होगा कि ये चेन्नई में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अराइव कैसे करना है कि मैंने 1 तो एलिमिनेट कर दिया, वो एलिमिनेट करते ही ए और डी चला गया। अब 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है, 2 करेक्ट है या नहीं उसमें कंफ्यूजन, ओनली से आप एलिमिनेट कर सकते हो, वरना स्टेट्स आप काउंट कर सकते हो कि गुजरात में लाई करता है, महाराष्ट्र में करता है, गोवा में है, केरला में है, तमिलनाडु में है, ठीक है, कर्नाटका हो गया। तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा 5 स्टेट से ज़्यादा में वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड होते हैं, तो इसका आंसर 3 ओनली है।
ये मैप से आप देख सकते हो कि वेस्टर्न घाट जो है गुजरात, दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। सो इट इज ऑफ कोर्स मोर देन 5 एंड हिमालयन माउंटेन रेंज का आप मैप देख सकते हो, इट इज ऑल्सो अगेन मोर देन 5। 3 ओनली आंसर। With reference to river Tista, consider the following statements. The source of river Tista is the same as that of Brahmaputra, but it flows through Sikkim. Ragit originates in Sikkim and it is a tributary of Tista. River Tista flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. बाकी कुछ पता हो या ना पता हो, ये डेफिनेटली पता होगा कि ये बॉर्डर से फ्लो नहीं करती है, ये एकदम सेंट्रल, बांग्लादेश के सेंट्रल रीजन से फ्लो करके हुए जाते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो 3 गलत है। अब 3 गलत होते ही ऑप्शन ही सारे एलिमिनेट हो गए, 2 ओनली बचता है। तो वर्ड तो डेफिनेटली अपने आप ही गलत हो गया। तो ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ इतना याद है कि बे ऑफ बंगाल में कहां से मीट करती है तीस्ता रिवर। ये मैप देखिए आप, ये आपका बांग्लादेश आ रहा है और ये बॉर्डर पे नहीं मिल रही है, ये यहां से जाके मिल रही है इधर से। ठीक है, तो इससे हमने ऑप्शन सी को एलिमिनेट करके इजीली ये आंसर निकाल सकते हो। आपके 2 ओनली इसका आंसर है। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर मैपिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस। इसमें हमने हिल्स देखे, रिवर्स बेस्ड क्वेश्चन देखे, ग्लेशियर्स, बॉर्डरिंग सिटीज एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज, काफी कॉमन थीम मिला आपको। यूथोपिया का आपको थीम मिला कि यूथोपिया के उस 2 नेबरिंग रीजन्स को 2 बार पूछा यूपीएससी ने। मेडिटेरेनियन, कैस्पियन, ब्लैक सी, सीरिया और इराक, ईरान, ये कॉमन एरियाज हैं जो पूछे जाते हैं। यूक्रेन, रशिया। प्लेसेस इन यूज जो इस साल पूरे रही हो, वो मेरी एडवाइस है कि आप थॉरली स्टडी करें। और जो फोकस एरियाज इन 25 क्वेश्चंस में आपने आइडेंटिफाई करे हैं, कॉमन एरियाज जो बार बार पूछे गए हैं, प्लीज उनको जरूर स्टडी करें। कोई आपके कमेंट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।